Amalgamation. In our last lecture, we have studied how to calculate purchase consideration. We have studied the three methods of purchase consideration, which is lump sum method, net asset method, net payment method. We have also studied a method which is a part of net asset method, that is intrinsic value method or share exchange method. Then after we have studied the journal entries in the books of purchasing company as well as journal entries in the books of selling company, means we have studied all the things. So the next step is we have to calculate the examples of purchase consideration and the full sum. Sum number 11, page number 22. Given below are the balance sheet of Jai Limited and Ajay Limited on 31st March 2019. Equity and liabilities, whereas equity share of 100 each, 13% debenture, general reserve, profit and loss account, bank loan and sundry creditors are given. Out of which debenture, bank loan and creditor, these are our liabilities. Equity share capital, general reserve, profit and loss account are owners fund. Now on the asset side, goodwill, building, machinery, debtor, stock and bills receivable, all are our assets. Information: the two companies decide to amalgamate on 1/4/2019 and a new company called Vijay Limited was formed with an authorized capital of rupees 10 lakh. Means two companies are closed. Which two companies? Jai Limited and Ajay Limited. Both will close their business and one new company called as Vijay Limited will acquire both the companies. Means क्या हो रहा है, विजय लिमिटेड जय और अजय दोनों बिजनेस को परचेज कर रही है. Vijay Limited was formed with an authorized capital of rupees 10 lakh in shares of 100 each. मीन्स ये authorized capital दी है जो हमको सिर्फ डिस्क्लोज करनी है. For the purpose of amalgamation, the assets are to be revalued as follow. यहाँ पे हर एक असेट कौन सी वैल्यू से परचेसिंग कंपनी ले जा रही है वो वैल्यू दी है. द लायबिलिटीज आर ऑल्सो टेकन ओवर एट देयर बुक वैल्यूज. लायबिलिटी को हम कौन सी वैल्यू से ले जा रहे हैं? बुक वैल्यू से. द इश्यू ऑफ न्यू इक्विवेलेंट amount of 15% debenture in Vijay Limited in exchange of every debenture in Jai Limited and Ajay Limited. Means Vijay Limited क्या करती है, पहले तो जय और विजय के पुराने डिबेंचर्स को ले लेती है, जय और अजय के, और उसके बाद बदले में सेम नंबर ऑफ डिबेंचर देती है अपनी कंपनी के, मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है? 15%. अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आया. The purchase consideration is to be paid by issue of equity share at a premium of rupees 5 per share of rupees 100 each in Vijay Limited. मगर कितने इक्विटी शेयर देंगे? It is not specified. It means अगर आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं है, कितने इक्विटी शेयर दे रहे हैं, कितना कैश दे रहे हैं, वो स्पेसिफाई नहीं है, तो कौन सी मेथड हो जाएगी परचेज कंसिडरेशन की? नेट असेट मेथड. Pass necessary journal entries in the books of Vijay Limited, giving effect to the above arrangement and prepare opening balance sheet. Also pass journal entry in the books of Jai Limited and Ajay Limited. तो अभी हम क्या करेंगे? जो सेलिंग कंपनी है जय लिमिटेड, उसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे, बराबर. उसके साथ अजय लिमिटेड की जो जर्नल एंट्रीज है वो आपको खुद करनी है. तो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल. पहला क्वेश्चन, ये अमालगमेशन कौन सा? इन नेचर ऑफ परचेज है या इन नेचर ऑफ मर्जर है? तो यहाँ पे हमको असेट्स जो रेट से ले जा रहे हैं उसकी वैल्यू दी है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू. मीन्स जो परचेसिंग कंपनी है वो असेट्स को बुक वैल्यू पे नहीं ले जा रही, इसलिए क्या हो गया? अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज. अब बारी आई परचेज कंसिडरेशन गिनने की. तो इन्फॉर्मेशन नंबर 2 देखो. द असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज फॉलो. तो जय और अजय की सारी असेट्स हम लिखेंगे. आप असेट कहाँ से देखोगे? बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में पहले गुडविल है, मगर गुडविल की रीवैल्यूड अमाउंट हमने 150 और 1 लाख लिखी. उसके बाद बिल्डिंग है तो उसकी रीवैल्यूड अमाउंट 5 लाख और 3 लाख लिखी. उसके बाद मशीनरी है तो मशीनरी की रीवैल्यूड अमाउंट 1,02,500 एंड 57,500. उसके बाद डेटर्स है तो डेटर्स की रीवैल्यूड अमाउंट 150 एंड 80,000. उसके बाद स्टॉक दिया है 80,000 एंड 60,000.
और उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है 30 एंड 20,000, मगर उसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी 20 और 10। तो हमने सबकी कौन सी अमाउंट ली, रीवैल्यूड अमाउंट ली। अब असेट साइड हमने देख लिया, कोई भी असेट बाकी रहती नहीं है। अगर कोई असेट बाकी रहती है और यहाँ पे बताया है कि कंपनी ने पूरा बिजनेस ले लिया, सारी असेट और सारी लायबिलिटी ले ली, तो जो बाकी रहती असेट है और अगर वो टेंजिबल असेट है तो उसे हम कौन सी वैल्यू से ले जाएंगे, बुक वैल्यू से। और अगर इनटेंजिबल असेट है, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू 0 है, ये एज्यूम करेंगे। उसके बाद उसमें से क्या माइनस करोगे, एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर। अंदर बताया कि सारी लायबिलिटी कंपनी कैसे ली जा रही है, बुक वैल्यू से। तो लायबिलिटी में पहले डिबेंचर बुक वैल्यू से ली जा रही है 2 लाख और 1 लाख, उसके बाद बैंक लोन जो सिर्फ जय में है 60,000, और उसके बाद क्रेडिटर 270 एंड 140। असेट माइनस लायबिलिटी किया तो आपको क्या मिल गया, पीसी। पीसी मीन्स परचेज कंसिडरेशन, बराबर। जय के परचेज कंसिडरेशन में आंसर में थोड़ा मिस्टेक दिया है, 4,72,000 आंसर में दिया था, मगर एक्चुअल कितना आएगा 4,72,500। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो इन्फॉर्मेशन नंबर 3 देखो, द परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर ऑफ 100 ईच। मीन्स 100 रुपये का शेयर 5 रुपये प्रीमियम, मीन्स 105 में हम इश्यू करते हैं। तो 4,72,500 पे करने के लिए 105 से डिवाइड किया तो कितने शेयर्स इश्यू करेंगे, 4,500, और अजय के 3,500 इक्विटी शेयर्स। कौन से रेट से, 105 से, मीन्स 5 रुपीज़ प्रीमियम हो गया। अब बारी आई जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्रीज हम किसकी बुक में लिख रहे हैं, जय। जय कौन है, सेलिंग कंपनी, दैट इज ट्रांसफरर कंपनी। मैंने आपको बताया था मैं सारी जर्नल एंट्रीज नहीं लिख रहा, सिर्फ पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, आपको जर्नल एंट्रीज लिखनी है। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड देखते हैं। लायबिलिटी साइड में क्या है, इक्विटी शेयर है, कितने के, 6 लाख के। तो शेयर कैपिटल किसकी होगी, इक्विटी शेयर होल्डर की। तो पहली एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, कितना, 6 लाख। कौन सी वैल्यू ली, अब जर्नल एंट्री के टाइम पे मैं सिर्फ बैलेंस शीट की वैल्यू, बुक वैल्यू देखूंगा, अंदर जो वैल्यू है वही देखूंगा। आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ रीवैल्यूड अमाउंट। उसके बाद डिबेंचर है, तो डिबेंचर इज अवर लायबिलिटी, और लायबिलिटी कंपनी ले जा रही है। तो जो भी लायबिलिटी कंपनी ले जा रही है, सारी लायबिलिटी हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, मगर वो बाद में, पहले हम ऑनर्स फंड की बात करेंगे। तो इक्विटी शेयर के अलावा कौन कौन सा ऑनर्स फंड है, तो कि जनरल रिजर्व, वो तो अजय में है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, रिजर्व ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो क्या होगी, जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब देखो जनरल रिजर्व तो अजय जय में है ही नहीं, तो आएगा ही नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था 10,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, 10,000 मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट हमने उसको दे दिया। थर्ड एंट्री में लायबिलिटीज टेकन ओवर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। द वर्ड इज लायबिलिटीज टेकन ओवर। कंपनी जो लायबिलिटी ले गई है उसको आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे। तो कंपनी कौन कौन सी लायबिलिटी ले गई है, सारी लायबिलिटी। सो एंट्री विल बी 13% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, बैंक लोन डेबिट 60,000, क्रेडिटर डेबिट 2,70,000। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, हमने डेबिट किया मीन्स क्लोज कर दिया। टू रियलाइजेशन अकाउंट, तीनों का टोटल कितना होगा,
5,30,000। तो हमने क्या किया, सारी लायबिलिटी को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट में। पूरी एंट्री सारी हम बैलेंस शीट देख के ही बनाएंगे। अब बारी आई असेट की, तो असेट साइड ऑल दी असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। अगर कैश एंड बैंक कंपनी ले गई है तो ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो सारी असेट को रियलाइजेशन में डेबिट करोगे तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 11,40,000 टू गुडविल 80,000 टू बिल्डिंग 4 लाख। मीन्स अब ये सारी असेट यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, बराबर। तो सारी असेट हम कहाँ पे ले गए, रियलाइजेशन अकाउंट में। बिल्डिंग 4 लाख टू मशीनरी 2,30,000 टू डेटर्स 2,50,000 टू स्टॉक 1,50,000 टू बिल्स रिसीवेबल 30,000। मीन्स मैंने क्या किया, सारी असेट रियलाइजेशन में डेबिट कर दी। उसके बाद फिफ्थ एंट्री क्या होगी, जो हमने बिजनेस बेचा है उसके पैसे लेने हो गए ना, तो पीसी रिसीवेबल। अब पीसी किसके पास से लेना है, परचेसिंग कंपनी के पास से। परचेसिंग कंपनी कौन सी है, तो कि विजय। तो विजय लिमिटेड डेबिट 4,72,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,72,500, बराबर। विजय के पास से पैसे लेने हो गए, तो विजय ने बिजनेस लिया था इसलिए विजय अकाउंट डेबिट, और इनकम हुई इसलिए रियलाइजेशन क्रेडिट। सिक्स्थ एंट्री में पीसी रिसीव्ड हो जाएगा। तो विजय क्या देता है हमने उनको बदले में, तो क्या अपने इक्विटी शेयर, मगर कौन से रेट से, 105। अगर सीलिंग कंपनी में एंट्री लिख रहे हो तो जो रेट से शेयर मिल रहा है वही लिखोगे आप। तो इक्विटी शेयर ऑफ विजय लिमिटेड डेबिट टू विजय लिमिटेड अकाउंट कितना, 4,72,500, यही अमाउंट आएगी। बीइंग में लिखोगे 4,500 इक्विटी शेयर्स रिसीव्ड एट 105 पर शेयर। इट मीन्स हमको क्या मिल गया, पीसी की अमाउंट मिल गई। अब देखो सोचो, कोई असेट ऐसी है जो कंपनी नहीं ले जा रही, नहीं है, अदरवाइज हम उसको बेच देते और एंट्री क्या पास करते, कैश और बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई लायबिलिटी ऐसी है जो कंपनी नहीं ले जा रही, ऐसी भी नहीं है। अगर होती तो उस लायबिलिटी को हम पे कर दे, तो एंट्री क्या होती, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और उसका प्रॉफिट और लॉस हम कहाँ ले जाते, रियलाइजेशन अकाउंट में, बराबर। उसके बाद क्या होता, प्रेफरेंस शेयर होता तो उसको हम पे करने पड़ते, मगर अभी प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस, और वो प्रॉफिट और लॉस आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर में, बराबर। उसके बाद ही अब आगे की एंट्री पास कर पाओगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द लेजर अकाउंट। ओके, वी आर अनएबल टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, व्हाई, बिकॉज वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड द अकाउंट। तो एग्ज़ाम के अंदर भी अगर आपको जर्नल एंट्री सीलिंग कंपनी के लिए पूछते हैं, देन ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन एंड टू पास ऑल एंट्रीज यू हैव टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स। सो इट मे बी पॉसिबल, एग्जाम में शायद ऐसा भी आ सकता है कि आपको क्या होगा, सिर्फ लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे। तो हमने जो एंट्रीज रिवाइज किए हैं वो एंट्री को रिवाइज करते करते हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो लेजर अकाउंट्स in the books of
जय लिमिटेड विच इज ट्रांसफरर कंपनी, सेलिंग कंपनी। तो पहला कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम, तो रियलाइजेशन अकाउंट। इस अकाउंट से आपको क्या पता चलेगा, प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन। ओके, चलो दूसरा कौन सा अकाउंट बनाना है, तो हमने किसको अपना बिजनेस बेचा है, विजय लिमिटेड को। तो सेकेंड अकाउंट इज परचेजिंग कंपनी अकाउंट। सो विजय लिमिटेड अकाउंट विच इज परचेजिंग कंपनी। चलो थर्ड क्वेश्चन आप कौन सा पूछोगे कि परचेजिंग कंपनी ने बदले में हमको क्या दिया, तो क्या अपने इक्विटी शेयर दिए, तो क्या इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये सारी अमाउंट किसको पे करनी है, तो क्या आइदर इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, इसलिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब कंपनी कैश ले जा रही है, नहीं। बैलेंस शीट में कैश या बैंक बैलेंस दिया है, नहीं। तो अगर कंपनी कैश और बैंक बैलेंस नहीं ले जा रही परचेसिंग कंपनी, तो हमको कैश और बैंक अकाउंट भी बनाना होगा, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो नाउ वी आर गोइंग टू पोस्ट इट। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो इक्विटी शेयर होल्डर के राइट साइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री 6 लाख रुपीज़ हमने एंट्री पास की थी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। उसके बाद डिबेंचर दिए हैं, वो लायबिलिटी है, तो रियलाइजेशन के राइट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटी, जिसके अंदर सारी लायबिलिटी लिखोगे 13% डिबेंचर 2 लाख, बैंक लोन 60,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,70,000। इट मीन्स जो लायबिलिटी कंपनी ले गई है वो सारी लायबिलिटी हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। और एंट्री क्या पास की थी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट मीन्स डिबेंचर अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो लायबिलिटी साइड इज ओवर, अब असेट साइड। सारी असेट हम कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड टू सन्ड्री असेट्स, जिसके अंदर सारी असेट्स लिखोगे आप, गुडविल 80,000, बिल्डिंग 4 लाख, मशीनरी 2,30,000, डेटर्स 2,50,000, स्टॉक 1,50,000, बिल्स रिसीवेबल 30,000। मीन्स हमने क्या किया, सारी असेट कहाँ ट्रांसफ़र कर दी, रियलाइजेशन के डेबिट साइड। एंट्री क्या पास की थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट। चलो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या थी, पीसी रिसीवेबल की, तो एंट्री थी विजय लिमिटेड डेबिट दैट इज परचेजिंग कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो परचेजिंग कंपनी के डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट कौन सी अमाउंट लिखोगे आप, पीसी की, विच इज 4,72,500, और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड बाय विजय लिमिटेड अकाउंट इनटू ब्रैकेट पीसी 4,72,500। क्लियर। उसके बाद विजय लिमिटेड ने हमने पीसी पे कर दिया, तो उसने क्या दिया था, इक्विटी शेयर, तो विजय लिमिटेड के क्रेडिट साइड बाय इक्विटी शेयर ऑफ विजय लिमिटेड अकाउंट 4,72,500। ये अकाउंट क्लोज हो गया बिकॉज उसने अमाउंट पे कर दी। और इक्विटी शेयर के डेबिट साइड टू विजय लिमिटेड अकाउंट 4,72,500, मगर ब्रैकेट में आप दिखाओगे 4,500 इक्विटी शेयर। 105 के रेट से आपको इतने इक्विटी शेयर मिले थे।
इतनी एंट्री और उसकी पोस्टिंग हमने कर ली थी। तो हमारी नेक्स्ट पॉइंट क्या था, वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस। चलो इसका टोटल करो और डिफरेंस ढूंढो। चलो हमने रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल किया, तो उसमें डेबिट साइड का टोटल कितना है 11,40,000, उसमें से क्रेडिट माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा 1,37,500। वो क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ, रियलाइजेशन लॉस। उसे आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 1,37,500। तो लॉस हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को। अब हमारे पास जो भी असेट बची है वो आप किसको दे दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। एक एंट्री की पोस्टिंग रह गई थी, वो क्या थी, जो रिजर्व थी वो हम किसको दे देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो जय लिमिटेड के अंदर लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 था, उसकी एक जर्नल एंट्री हमने पास की थी प्रॉफिट। अब हमारे पास कौन सी असेट बची है, तो कि परचेसिंग कंपनी ने हमको जो शेयर्स दिए थे वो बचे हैं, वो हम किसको दे देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये टोटल 4,72,500 और जो डिफरेंस आएगा वो बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 4,72,500। और इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट साइड टू इक्विटी शेयर ऑफ विजय लिमिटेड अकाउंट 4,72,500। एंट्री क्या, हाँ तो लास्ट एंट्री क्या होगी आपकी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफ जय लिमिटेड अकाउंट। और ये एंट्री पास करने से क्या होगा, जो जय लिमिटेड के इक्विटी शेयर है वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा एंड अल्टीमेटली हमारे पास जो कुछ भी असेट बची थी वो सारी हमने किसको दे दी, इक्विटी शेयर होल्डर को। सो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट भी टैली हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कंप्लीट किया, जो सेलिंग कंपनी थी उसके लेजर अकाउंट कंप्लीट किए और उसके जर्नल एंट्रीज कंप्लीट की। कौन सी सेलिंग कंपनी की, जय की। तो उसके बाद दूसरी सेलिंग कंपनी है अजय, उसके लेजर अकाउंट और जर्नल एंट्रीज आपको करनी है। और इसके बाद मैं क्या सिखाऊंगा, जो परचेसिंग कंपनी है विजय लिमिटेड, उसकी जर्नल एंट्रीज में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ओके।